Good morning, dear students. As you know, we have started theme third of history and empire across three continents, in which we are studying the Roman Empire, its social and political structure, and the administrative system. So far, we have seen in chapter that what are the sources by which we can recreate the Roman Empire. We have divided or we have categorized the sources in three parts: the textual sources, the documents, and the material remains. Then we have took the first topic, which was the early empire. The early empire means that the Roman Empire has started around 750 BC as a group of villages around the river Tiber in Italy, present day Italy, as a Rome. Then during many phases from monarchy to empire, it has expanded its territories by as far as in north Danube and Rhine river are making its boundary, in south Sahara desert are making its boundary, in west it has stretched from Spain, Britain to Euphrates river in the east. This is the geographical extension of the Roman Empire. Then we have seen that the three main pillars of the Roman Empire were the emperor, which is known as the principate, a leading citizen. Then the second main pillar was senate, which conclude the members of the wealthy family of Roman Empire and those from Italian descendant. And the third part or the third pillar of the Roman Empire is the army, which is the single largest organized body, around 6 lakh soldiers working in that. Then we have took the topics like 3rd century crisis. During 3rd century, when Rome has to fight on two fronts, from Germanic barbarian tribes in Europe to Parthian or Sasanian dynasty in east around the Euphrates river. So much of its land has been lost. Then we have took the topic gender, literacy and culture. We have seen that women had a greater position, a better status, but there are some contradiction too, because women are married at a little age, or there is a gap between the age of husband and wife, due to which husband is a little bit dominating in the social structure. Then we have seen the literacy, casual literacy is widespread. We have seen the advertisement symbols on Pompeii, a city which has been buried under the volcanic eruption, some advertisement, and then the culture. Today we will take the topic economic expansion. I have already discussed this topic with you that during the period of Roman Empire, they have traded wine, olive oil, wheat, and so many other agricultural products at a large scale. So as I believe you have already seen the topic, and we have seen some name like amphor, which is used to contain or to transport the wine, dresser 20 and all that. We have already seen. Today we will take the topic controlling workers. That how does the Roman Empire, which has a so much larger territory, control the workers? So let's start with the topic. Slavery was an institution deeply rooted in the ancient world, both in the Mediterranean and in the Near East, and not even Christianity, when it emerged and from as the state religion, seriously challenged this institution. Like, what is this meaning? Controlling workers. That how does this large empire, which is expanded in three continents, Asia, Europe, and Africa, control the workers? Slavery was an institution deeply rooted in the ancient world. Slavery. What does the word slavery mean? Slavery means that a person who has not his own free will, he has to rely on the will of his master. A person who has to work day and night on his master's will is known as a slave, and the practice is known as slavery. Mean कोई भी पर्सन है, उसका अपना कोई फ्री विल नहीं है, वो जो है अपने मास्टर की विल के अकॉर्डिंग अगर वर्क करता है तो उसको हम इसमें काउंट करते हैं, उसको हम काउंट करते हैं स्लैवरी के अंदर। तो स्लैवरी जो है, इसकी रीड जो है काफ़ी जो है जड़ें बहुत पुरानी थी, एंशिएंट वर्ल्ड से काफ़ी लंबे टाइम से जो है स्लैवरी जो है वो परफॉर्म हो रही थी रोमन एम्पायर। वह जब क्रिश्चियनिटी है ये
ऑफिशियल स्टेट रिलीजन के रूप में जो है राइज होता है, तो इसने थोड़ा चैलेंज भी किया था इस सिचुएशन को। इट डज नॉट फॉलो दैट द बल्क ऑफ द लेबर इन द रोमन इकोनॉमी वाज परफॉर्म बाय। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं था कि स्लेवरी जो है ये इंस्टीट्यूशन था, यानी लीगल था रोम में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे जो काम हैं वो रोमन जो है एम्पायर के अंदर लेबर जो वर्क है वो सारा का सारा स्लेव्स के द्वारा किया जाता है। दैट दे में है पूरा लार्ज पार्ट ऑफ रिपब्लिकन पीरियड, काफ़ी बड़ा पार्ट थी ये रिपब्लिकन पीरियड जो था रोमन हिस्ट्री का उसके अंदर। बट अंडर ऑगस्टस देयर वर स्टिल 3 million slaves to total population of 7.5 million, but it was no longer due true of the empire as a whole. Slaves were an investment. At least one Roman agricultural writer advises landowners against using them in contexts where too many might be required, for example for harvest or where their health would be damaged, for example by malaria। कि क्या चीज़ कहना चाह रहा है यहाँ पे, रोमन जो एम्पायर है इसके अंदर जो स्लेव्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा जो है इनको एक सिंबल ऑफ स्टेटस के रूप में भी देखा जाने लगा था। स्लेव्स जो हैं इनको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे लोग। अब था यहाँ पे ये कि इनसे हर काम नहीं होता था, या फिर लेबर जो है वो वर्क इनसे बहुत कम करवाती, क्योंकि इन्हें खरीदना होता था। वी हैव टू बाई अ पर्सन अगेंस्ट हिज विल, एक पर्सन को उसकी विल के खिलाफ खरीदना होता था, पैसे खर्च करने होते थे, यानी एक तरीके का इन्वेस्टमेंट था। तो एक एग्रीकल्चरल जो राइटर था, रोमन एग्रीकल्चर राइटर, उसने यहाँ तक सजेस्ट कर दिया था जो मास्टर्स थे, जो लैंड ओनर्स थे उनको, कि जो सर्वेंट्स है क्योंकि आपने इन्हें पैसा देके खरीदा है तो इन्हें ऐसे कामों में मत लगाओ जहाँ पे इनका हेल्थ डैमेज हो या जहाँ पे इनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट, क्योंकि ज़्यादा रिक्वायरमेंट अगर हमें होगी लेबर के अंदर और अगर हम स्लेव्स को ज़्यादा लगाएंगे तो ज़्यादा पैसा हमारा उसमें खर्च होगा, मीन्स लेस प्रॉफिट। या फिर अगर उन्हें ऐसे काम में लगाएं जिससे कि उनकी हेल्थ डिग्रेड हो जाए, तो क्योंकि वो हमारा इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ डिग्रेड होगी तो उसकी वजह से इम्पैक्ट किस पे आएगा, हमारे इन्वेस्टमेंट पे। तो ये कुछ सजेशंस यहाँ पे दिए थे। एज वारफेयर became much less widespread with the establishment of the peace in the 1st century, the supply of slave traded to the decline and the users of slave labor thus had to return either to slave breeding। देखिए क्या चीज़ है, व्हाट डज दिस मीन। जैसे जैसे देखिए वारफेयर कम होते गए, वारफेयर लेस होने का मतलब क्या होता है, वारफेयर में लेस होने का मीन से दैट वी हैव ऑलरेडी सीन दैट ड्यूरिंग द एज ऑफ ऑगस्टस, when around 27 BC Augustus became the Roman emperor, he had stopped the expansion of his territories। अपनी जो territories उसके expansion को वो रोक देता है। रोकने के बाद में काफ़ी बड़ा एरिया ऑलरेडी एक्सपायर्ड हो चुका होता है, तो और एरियाज की उन्हें जरूरत नहीं होती, तो एक्सपेंशन रोक दिया जाता है। नाउ उसके बाद में जो रूलर्स अराउंड 1st और 2nd सेंचुरी, बोथ पीरियड आर नोन एज द पीस पीरियड और रोमन पीस ऑफ पैक्स रोमना। ड्यू टू दिस पीस पीरियड देयर इज नो वारफेयर अमंग द नेबरिंग कंट्रीज। जो नेबरिंग जो एरियाज है, जो नेबरिंग किंगडम या एम्पायर्स थे, उनके साथ में कहीं कोई वारफेयर जो है उसके अंदर रोम जो है वो इंगेज नहीं था, उसमें इंगेज नहीं था। तो मीन्स वहाँ के जो वॉर प्रिजनर्स, इनके वॉर प्रिजनर्स या वॉर कैप्टिव जो हैं उन्हें जो है ये लोग एज अ स्लेव यूज़ करते थे, तो ऐसा कोई वॉर कैप्टिव देखने को मिले नहीं। बिकॉज देयर इज़ नो वॉर कैप्टिव, जो स्लेव ट्रेड है वो धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी, कम होने लगी, स्लेव ट्रेड जो है वो डिक्लाइन। तो अब जो लेबर थे, जो स्लेव लेबर थे, जो यूजर थे स्लेव लेबर के, उन्होंने एक नया आइडिया निकाला और वो क्या था, स्लेव ब्रीडिंग। स्लेव ब्रीडिंग में क्या होता है, encouraging female slaves and their partners to have more children who would of course also be slave। यानी जो स्लेव्स हैं, मदर फादर अगर दोनों स्लेव हैं तो उनके जो चिल्ड्रन से वो ऑब्वियसली स्लेव जो है वही माने जाते थे, उनकी भी कोई फ्री विल नहीं होती थी। तो इसलिए जो स्लेव ब्रीडिंग है उसको जो है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पे इंकरेज किया। आगे हम बात करें, बिकॉज एन एक्सटेंसिव यूज ऑफ स्लेव लेबर वुड हैव बीन टू एक्सपेंसिव, जो स्लेव लेबर है उसका यूज काफ़ी एक्सपेंसिव होता था। The Roman agricultural writers paid a great deal of attention to the management of labor. Caligula, a 1st century writer who came from the south of Spain, recommended that landowners should keep a reserve stock of implements and tools, twice as many as they needed, so that production could be continuous। For the loss in slave labor, time exceeds the cost of such items। देखिए क्या चीज़ है, रोमन जो है एग्रीकल्चरल राइटर है, रोमन एग्रीकल्चरल राइटर paid a great deal of attention to the management of labor। जो लेबर है उसके मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा जो ध्यान दिया। मेन क्या है उसका, देखिए कलिगुला। तो कलिगुला क्या है, एक राइटर है, रोमन एग्रीकल्चरल
writer, right question could be asked that who was Caligula. A 1 mark question could be asked that who was Caligula. Caligula was the agricultural writer. जो agriculture जो उसके बारे में लिखता था, लेबर्स जो है उसके बारे में मेंशन कर रहा था कि हाउ डज वन कैन मैनेज इट्स लेबर्स. तो इसने ये देखिए 1st सेंचुरी का राइटर था, उसने साउथ ऑफ स्पेन से था, उसने ये रिकमेंड किया लैंड ओनर्स को कि उनको अपने पास में जो टूल्स हैं, जो स्टॉक है वो रखना चाहिए, रिजर्व स्टॉक रखना चाहिए कितना, जितनी उनकी रिक्वायरमेंट है उससे दुगने का, जिससे कि वो बाकी पीरियड में जब उनके पास रिजर्व्स ना हो उसको जो है यूज़ कर सकें और उनका जो प्रोडक्शन है, जो एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को कंटिन्यूस वर्क करती रहे. अमंग दैट विदाउट सुपरविजन नो वर्क वुड एवर गेट डन. देखिए वर्कर जो लेबर्स हैं इनका सुपरविजन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी वर्क जो है विदाउट सुपरविजन से कंप्लीट नहीं होता है. तो सुपरविजन वॉज पैरामाउंट फॉर बोथ फ्री वर्कर्स एंड स्लेव. जो सुपरविजन है ये पैरामाउंट है, यानी दोनों का होता है, चाहे वो फ्री लेबर हो चाहे स्लेव, दोनों का जो है यहाँ पे जो है बेसिकली हम बात करें तो सुपरविजन किया जाता था. टू मेक सुपरविजन इजियर वर्कर्स वर समटाइम्स ग्रुप इनटू ग्रुप गैंग्स फॉर स्मॉलर टीम्स. देखिए जो सुपरविजन है उसको इजी करने के लिए जो वर्कर्स हैं इनको ग्रुप्स के अंदर या गैंग्स में जो है डिवाइड कर दिया था, ताकि आसानी से जो है इनके ऊपर ध्यान रखा जा सके. अब देखिए ये जो सिस्टम था ये बहुत इनह्यूमन सिस्टम था. दिस सिस्टम वॉज सो मच ऑफ इनह्यूमन सिस्टम. इस चीज़ में क्या रहा देखिए आप यहाँ पे इमेजेस के थ्रू देख सकते हैं. जो वर्कर्स हैं या जो स्लेव्स हैं, Caligula recommended escorts of 10, claiming it was easier to tell who was putting in effort and who was not in work group of this size. Caligula जो है उसने देखिए जो ग्रुप्स या टीम्स में जो डिवाइड हो रहे थे स्लेव वर्क करने के लिए, उसके लिए उसने क्या सजेस्ट किया कि 10 लोगों के अंदर डिवाइड करिए टीम को, जिससे कि हमें इजीली पता चल सके कौन वर्क कर रहा है कौन वर्क नहीं कर रहा है. प्लिनी द एल्डर, द ऑथर ऑफ ए वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री, कंडेम द यूज ऑफ स्लेव गैंग एज द वर्स्ट मेथड ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोडक्शन. देखिए नेक्स्ट चीज जो आपको याद रखनी है, प्लेनी, इसका नाम है द एल्डर, जो कि ऑथर था द वेरी फेमस नेचुरल हिस्ट्री बुक का. उसने ये प्रैक्टिस की, ये जो गैंग बनाने के जो वर्कर्स हैं उनसे काम लेने की प्रैक्टिस को जो है उसने कंडेम किया. उसने कहा कि ये जो सिस्टम है ये बहुत इनह्यूमन है, क्योंकि इनके पैर आपस में बांधे जाते हैं. ये जो वर्कर्स हैं आप देख सकते हैं इनके पैर जो है वो आपस में बांधे गए हैं. इनके पैर आपस में बंधे होने से क्या थे कि ये बहुत इनह्यूमन कंडीशन जो है वो हो जाती थी. इसको इसलिए जो है उसने कंडेम किया. All this look draconian, but we should remember that most factories in the world today enforce similar principle of labor control. देखिए ये जो सिस्टम जो हम यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये काफ़ी ड्रैकोनियन लगता है हमें लगता है कि किसी को जो है ऐसी चीज़ उनके पैरों को जो है साथ में बांधना काफ़ी देर लीगल होगा. इसको कहा जाता है ड्रैकोनियन. ड्रैकोनियन का मीनिंग क्या होता है? हार्श, शो कॉल्ड, बिकॉज एन अर्ली 6th century BC Greek lawmaker called Draco who prescribed death as a penalty for the most evil. क्योंकि ड्रैको जो कि लॉ मेकर था उसमें अधिकतर जो क्राइम कमिट हो रहे थे 6th सेंचुरी की BC में ग्रीक जो एम्पायर है उसके अंदर, उनके लिए उसने सीधा जो है कौन सी जो है सज़ा की बात कर रही थी, फांसी की, एग्जीक्यूशन की पेनल्टी जो है वो डेथ उसने रख दी. इसलिए जैसे जो भी ऐसा हार्श नियम मतलब उसको ड्रैकोनियन नियम कहते थे. बट वी शुड रिमेंबर दैट मोस्ट फैक्ट्रीज इन द वर्ल्ड टुडे इन्फोर्स सिमिलर प्रिंसिपल ऑफ लेबर कंट्रोल. देखते जो फैक्ट्रीज है वो सिमिलर मेथड ही जो है वो रखती है, वो ग्रुप्स में डिवाइड कर देती हैं, गैंग्स में डिवाइड कर देती है वर्कर्स को, और उनके अकॉर्डिंग जो है वर्क के ऊपर कंट्रोल करती है. चेन से नहीं बांधते हैं बट स्टिल दे हैव डिवाइडेड द वर्कर्स इन ग्रुप्स और टीम. द एल्डर Pliny described conditions in the frankincense factory offices of Alexandria where it has used no amount of supervision seemed to suffice. A seal is put upon the workmen's aprons. They have to wear a mask or a net with a clothes mesh on their hand, and before they are allowed to leave the premises, they have to take off all their clothes. देखिए क्या कंडीशन से देखिए किस तरीके से जो है वर्कर्स को कंट्रोल किया जा रहा है, काम हो रहा है. द एल्डर Pliny described conditions in the frankincense. फ्रैंकिनसेंस जो है ये यूरोपियन गेम है, ऑटोमेटिक एरोमेटिक जो रेजिन है उसके लिए काम की जगह थी, फैक्ट्री थी, वहाँ पे उसने ये मेंशन करता है कि जो वर्कर्स हैं उसके लिए क्या था. सबसे पहले तो जो वर्कमैन है, जो मजदूर है, उनके एप्रन्स के ऊपर एक सील लगा दी जाती थी. उसके बाद में उनको जो एक मास्क और एक नेट जो है वो पहनने के लिए जाता था, जिससे कि वो अपने को जो है कोई तरीके से कवर कर लें. और जब वो काम खत्म करके बाहर निकलते तो दे हैव टू रिमूव ऑल देयर क्लोथ, उनको अपने सारे कपड़े निकालने होते, जिससे कि उनकी चेकिंग जो है ये की जा सकती है. A loop of 398 referred to workers being branded so they could be recognized if and when they run away and try to fight. और देखिए इसको और क्या था वर्कर्स को कंट्रोल करने का. A loop of 389
मेंशन था कि जो वर्कर्स हैं इनको ब्रांड मीन्स उनके ऊपर उनकी बॉडी पे सील लगाई जाए, जिससे कि वो अगर कहीं भाग जाए करना है तो उस सील की मदद से उन्हें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मैनी प्राइवेट एम्प्लॉय कास्ट देयर एग्रीमेंट विद वर्कर्स इन द फॉर्म ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्ट टू एबल टू क्लेम दैट देयर एम्प्लॉइज वर इन डेट टू देम एंड दस इंश्योर टाइटल कंट्रोल ओवर देम। क्योंकि कई सारे जो प्राइवेट एम्प्लॉयज थे, कई सारे जो मालिक हैं, वो अपने वर्कर के साथ में कंट्रोल जो है उनको करने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाते थे, जिसके अंदर उनको जो है कर्जा दे देते थे, जिससे कि वो कर्जे के तले उनके नीचे दबे रहते थे, उनके लिए काम करना उनकी मजबूरी बन जाती। To work and servitude, although they are free, in other words, a lot of the poor families went to that bondage in order to survive. From one of the recently discovered letters of Augustine, we learned that parents sold their children into servitude for a period of 25 years. Augustine asked a lawyer friend of his whether these children could be liberated once the father died. क्योंकि कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हमें मिलते हैं जिनकी मदद से जो रोमन पीरियड है उसके अंदर लेबर जो है उसको कंट्रोल किया जाता है। Now the next topic which will be discussed is social hierarchy. Social hierarchy. How does the empire have the social structure? Social जो सोसाइटी है उसका क्या स्ट्रक्चर था, किस तरीके से जो है लोग इसमें शामिल थे, उसके बारे में अब हम बात करेंगे। Let us stand back from the details now and try and get a sense of the social structure of the empire. देखिए जो सोशल स्ट्रक्चर है एम्पायर का उसके बारे में हम बात करेंगे। टैक्टस describe the leading social group of the early empire as follows: senators, patres means father, leading member of the equestrian class, the respectable section of the people, those attached to the great houses, the unkempt lower class who he tells us were addicted to the circus and theoretical displays, and finally the slaves। देखिए जो सोशल स्ट्रक्चर है like as in Indian culture, I believe you have already heard so many times that the ancient Indian literatures have divided the society in four bonds. The Indian society in ancient period were divided in four bonds: Brahman, Kshatriya, and Shudra and Vaishya. Like that, the Roman society has also been divided in three groups. The first one are the leading social group of the early empire, the senator. The first one, the senators. Then the second ones are senators, lower class, and slave. These are the three groups of the people in Roman Empire. In the early 3rd century, when the Senate number roughly 1000, approximately half of the senators still came from Italian family. By the late empire, which starts with the reign of Constantine I in the early part of the 4th century, the two groups mentioned by Tacitus, the senators and the equites, has merged into a unified and experienced aristocracy. देखिए जो पहले यहाँ पे हम बात करें सोशल जो लीडिंग मेंबर्स थे वो कौन कौन हैं। देखिए इसमें सीनेटर्स हैं, इसमें इक्विटल्स हैं यानी जो हमारे लोअर क्लास हैं, और उसके बाद में स्लेव। ठीक है, 4 ग्रुप में डिवाइडेड है। इसमें शुरुआत का जो पीरियड है उसमें ये लोग अलग अलग थे, बट ड्यूरिंग जो पीरियड था कॉन्स्टेंटाइन के रूलिंग का, एंड दैट पर्टिकुलर पीरियड द सीनेट एंड द इक्विटस दोनों सबमर्ज हो जाते हैं, दोनों जो है सबमर्ज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू टैक्टस जो है उसकी बुक के अकॉर्डिंग। एंड एटलीस्ट हाफ ऑफ फैमिलीज वर ऑफ अफ्रीकन और ईस्टर्न ओरिजिन। दिस लीड रोमन एरिस्टोक्रेसी was enormously wealthy but in many ways less powerful than the purely military elite who came almost entirely from the non-aristocratic background। ये जो लोग थे देखिए जो सीनेट के अंदर मेंबर्स थे, इनके पास में वेल्थ काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन स्टिल दे हैव नॉट दैट मच ऑफ पावर विच इज़ द करंटली एरिस्टोक्रेट। जो मिलिट्री के जो लोग थे उनके पास में जितनी पावर थी वो पावर इनके पास में नहीं थी। द मिडिल क्लास नाउ कंसिडर्ड ऑफ द कंसिडरेबल मास ऑफ पर्सन कनेक्टेड विद इंपीरियल सर्विस इन द ब्यूरोक्रेसी एंड आर्मी, but also the more prosperous merchants and farmers of whom they were in the eastern provinces। उसी तरीके से देखिए मिडिल क्लास जो है ये भी उभर के आता है, जो कि क्या वर्क कर रहा होता है, काम कर रहा होता है इंपीरियल सर्विस के अंदर। मर्चेंट्स जो हैं वो यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं, फार्मर्स एंड ऑल दैट। सो मेनी जो है हम यहाँ पे सोशल हायरार्कीज का जो सिस्टम वो देख पाते हैं। वन राइटर ऑफ द अर्ली 5th century, the historian Olympicus, who was also an ambassador, tells us that the aristocracy based in the city of Rome drew annual income of up to 4,000 LPS of gold from their districts, not counting the produce they consume directly। देखिए एक जो राइटर है नेम है उसका ओलंपिकस, जो कि एम्बेसडर भी था
that shown that the loan ample income of up to 4000 LPS of gold direct loan जो है उसकी एनुअल इनकम कितनी थी 4000 LPS ऑफ गोल्ड। कितना वो कंज्यूम करते थे दैट डजंट मैटर, बट दिस इज द ओनली इनकम। The monetary system of the late empire dropped with the silver-based currencies of the first 3 centuries because the Spanish silver mines were exhausted and government ran out of sufficient stock of the metal to support a stable finance in silver. Constantine founded the new monetary system on gold and there were vast amount of this in circulation throughout late antiquity. देखिए क्या होता है, जो मॉनेटरी सिस्टम है, जो बैंकिंग जो सिस्टम होता है इनका, वो कोलैप्स कर जाता है लेट एम्पायर जो है उसकी शुरुआत में। रीज़न क्या होता है कि जो सिल्वर बेस्ड जो करेंसी होती है, जो सिल्वर के जो कॉइन्स बनते हैं वो बनना बंद जाते हैं। रीज़न क्या होता है उसके पीछे? द रीज़न इज जो माइंस है सिल्वर की माइंस स्पेन में, वहाँ से एग्जॉस्ट सिल्वर इज एन नेचुरल रिसोर्स, सिल्वर इज एन नेचुरल मिनरल। मिनरल जो है नेचुरल लेवल पे एक टाइम के बाद में एग्जॉस्ट हो जाता है, ड्यू टू विच स्पेनिश सिल्वर माइन जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है। तो एक नया जो मेथड है कॉइनिंग का वो इंट्रोड्यूस करता है कॉन्स्टेंटाइन नए मॉनेटरी सिस्टम में। गोल्ड कॉइन जो है he has introduced gold coins. The late Roman bureaucracy, both the high and middle, was a comparatively affluent group because it used the bulk of its salary in gold and invested much of its in mining up assets like gold. देखिए जो लेट रोमन ब्यूरोक्रेसी थी, चाहे वो हायर हो या मिडिल क्लास के लोग हो, काफ़ी जो है एफिलेंट ग्रुप था कंपेरेटिव। काफ़ी जो पैसा ही अपना वो सैलरी जो है गोल्ड के अंदर लेते थे, उसको जो है आगे इन्वेस्ट करते थे। There was of course also a great deal of comparison, corruption जो है वो काफ़ी ज़्यादा होता था। There was of course also a great deal of corruption especially in the judicial system and in the administration of military system. मिलिट्री और जुडिशियल सिस्टम जो है उसके अंदर हमारे को बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे करप्शन देखने को मिलता है। The extortion of the higher bureaucracy and the greed of the provincial governors were probable, but government intervened repeatedly to curb these forms of corruption. करप्शन जो है वो काफ़ी जो है पॉपुलर था, काफ़ी ज़्यादा जो है वाइड स्प्रेड लेवल पे होता था। उसको जो है कट करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो कई बार जो इंटरफेयर करती थी, बट स्टिल वी कैन सी द सोशल हायरार्कीज। सोशल हायरार्कीज जो है हमने देखा शुरुआत में सोसाइटी में जो है सीनेटर्स, एक्विटीज, लोअर क्लास एंड स्लेव, 4 ग्रुप में डिवाइड था। देन हमने बात की इसके अंदर मिडिल क्लास जो है ये एक नया जो है इमर्ज आउट होकर आता है, जो अपनी मोस्ट इनकम जो है वो ब्यूरोक्रेसी में वर्क करते हुए अर्न करता है। जो ब्यूरोक्रेसी के लोग होते हैं लेट एम्पायर में, ये अपनी अधिकतर इनकम जो वो किस में लेते हैं? गोल्ड में। रीज़न क्या है? नया मॉनेटरी सिस्टम गोल्ड का शुरू करने के पीछे कॉज द सिल्वर माइंस इन स्पेन जो है, जो सिल्वर माइंस होती है स्पेन में, वहाँ पे सिल्वर जो है वो एग्जॉस्ट हो जाती है, ड्यू टू विच दे हैव टू मूव ऑन टू सम अदर मॉनेटरी सिस्टम। और कॉन्स्टेंटाइन जो नया मॉनेटरी सिस्टम शुरू करता है वो किस पे बेस होता है? दैट इज़ बेस्ड ऑन द गोल्ड। तो ये अपनी सैलरी गोल्ड में लेते थे और उसको लैंड में इन्वेस्ट करते थे। काफ़ी वेल्दी जो है ये क्लास के अंदर इमर्ज आउट हो चुके थे। In the next class, we will discuss the topic late antiquity. Till then, have a nice day.